ओम शांति। आज के बाबार 14/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে যখন মানুষের জীবনে কোনো দুঃখ সুখ আসে তো অজ্ঞানী যারা তারা কি ভাবে আর তোমরা জ্ঞানী বাচ্চা কি ভাবো। তো বাবা উত্তরে বলছেন যে যারা অজ্ঞানী বাচ্চা তারা ভাবে যে ভগবানই আমাদেরকে সুখ আর দুঃখ দিচ্ছেন, আর জ্ঞানী বাচ্চারা ভাবে যেটা আমাদের কর্মের ফল। তারপরে বাবা আজকে বলেছেন যে অনেক বান্ধেলি মাতারা আছেন, তারা বাবার কাছে অভিযোগ জানায় যে বাবা আমাদেরই ড্রামাতে এরকম পাঠ কেন, আমাদের উপরে এত অত্যাচার কেন হচ্ছে, এত শীতম এত কষ্ট আমাদেরকে কেন ভোগ করতে হচ্ছে। আমরা সহজভাবে সেন্টারে যেতে পারি না, মুরলি শুনতে পারি না, স্বামীরা অত্যাচার করে। তো বাবা বলছে তোমরা এটা বলতে পারো না, ড্রামাতে এটাই ফিক্স, এটাই পুরো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। এবং ড্রামাতে যারা অত্যাচারী তো তারা অবলার উপরে অত্যাচার করবে, তবে তো পাপের ঘোড়া তাড়াতাড়ি ভরবে আর তারপরে বিনাশ হবে। তো তোমাদের এই পাঠটাও কল্যাণকারী আছে ড্রামাতে। তো বাবাকে এটা বলা দরকার নেই, এটা তো ড্রামা ফিক্স আছে। এরকম এই ড্রামার মধ্যে অনেক বিচিত্রতা আছে, কিন্তু এই ড্রামাতে এত বিভিন্নতা, এত বিচিত্রতা, তবে তো এই ড্রামা দেখতে সুন্দর লাগছে। যেমন একটা নাটক মঞ্চে স্টেজ লাইট তো চাই, তো ঠিক সেরকম এই সূর্য চাঁদ সব বড় বড় লাইট আছে। তারপরে বাবা আজকে সত্যযুগেরও খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন যে সত্যযুগে তোমাদের স্থলভাগ খুব ছোট বলে তোমরা পুরো দুনিয়া ভ্রমণ করতে পারবে, কিন্তু এখন তো দুনিয়া অনেক বড়, তো কোনো মানুষই পুরো দুনিয়াকে ভ্রমণ করতে পারে না। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुनब। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন সাচ্চা সাচ্চা পাঠশালায় বসে আছো, এটা সৎসঙ্গ। এখানে তুমি সৎ বাবার সঙ্গ পেয়েছো, যে বাবা তোমাকে পার লাগিয়ে দিচ্ছে, এই কলিযুগ ভবসাগর থেকে আমাদের নৌকা পার করে বাবা আমাদেরকে সত্যযুগে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের প্রশ্ন, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? বাবা বলছেন যে মানুষের জীবনে কর্মের হিসাব কিতাব তো আসেই, তো মানুষ কিভাবে বোঝে আর আমরা জ্ঞানী বাচ্চারা কিভাবে হিসাব কিতাবকে বুঝি। তো বাবা পার্থক্য জানতে চাইছেন। তো উত্তরে বাবা বলছেন मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। বাবা বলছেন যে মানুষের জীবনে যখন খুব দুঃখ আসে তখন তারা কি ভাবে যে ভগবানই দুঃখ দেন, ভগবানই সুখ দেন, কিন্তু আমরা জানি কি না আমাদের এটা কর্মের হিসাব কিতাব। তো বাবা আরও জোর করে আজকে বলছেন যে আমি কখনো কাউকে দুঃখ দিতে পারি না, আমি তো সবাইকে সুখের রাস্তা দেখাতে আসি। তো বাবা বলছেন যে আমি কখনো কাউকে দুঃখ দিইনি, তো এটা তোমাদেরই কর্মের ফল অনুসার তোমরা সুখ বা দুঃখ পাচ্ছ,
आमी काउके दुख देई ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ मिले बस वहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। बाबा बोलছেন, আমি যা আছি, আমি যেমন আছি, আমাকে যথার্थ रूपे केउ जाने ना। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थार्थ बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाबा बोलছেন যে ঋষি মুনিরাও বলে গেছেন যে আমরা রচয়িতা মালিককে এবং তার বেহদের রচনাকে আমরা জানতে পারছি না। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। यह है बत्तियाँ। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্ম মহাতত্ত্বে বা সূক্ষ্মবতনে সূর্য চাঁদ নেই, মূলবতন বা সূক্ষ্মবতনে সূর্য চাঁদ নেই, কিন্তু এই স্থূল জগতে যেখানে পঞ্চতত্ত্ব প্রকৃতির তত্ত্ব আছে, তো এখানে পৃথিবীতে যেহেতু এটা নাট্যমঞ্চ, এখানে মনুষ্য সৃষ্টির খেলা চলছে, তো এখানে আলো দেওয়ার জন্যে মান্ডওয়ার লাইট बत्ती बाबा बोलছেন যে সূর্য আর চাঁদ আছে, চাঁদ তারা আছে। तो यह है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে আকাশে সূর্য উদয় থাকা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে এখন অজ্ঞানতার অন্ধকার আছে। তাই পৃথিবীতে যেভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকার ছড়িয়েছে, আকাশে এরকম সূর্য যদি হাজারটা উদয় হয়ে যায় তাও কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করতে পারবে না। কিন্তু যখন জ্ঞান সূর্য শিব বাবা আসেন তখন এই অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করেন। তাই বলা হয় জ্ঞান সূর্য প্রগটা অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ। বা এই জন্যে ভগবানকে হাজারো সূর্য থেকেও তেজময় বলা হয়, কারণ এই পৃথিবীর যে অজ্ঞানতার চরম অন্ধকার, হাজার সূর্য আকাশে উঠলেও এই অন্ধকার দূর হবে না যতক্ষণ শিব বাবা না আসে। तो यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर होगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के, तो यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। বা হচ্ছে এটা বেহদের ঘর, এটা মান্ডবা, এটাই হচ্ছে স্টেজ মঞ্চ বা কর্মক্ষেত্র, যেখানে আত্মা সুখ দুঃখের পাঠ প্লে করছে। कर्म तो जरूर करना होता है, सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। बाबा बोलছেন যেটা তো গীতা পাঠশালা, আর পাঠশালাতে কোনো সময় বৃদ্ধরা গিয়ে পড়ে না, কিন্তু এইটা এমন পাঠশালা যেখানে বৃদ্ধ, জওয়ান এবং
बाच्चा सबाई पढ़छे। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं हैं। বা বলছে মানুষ বেদ শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু বেদ শাস্ত্র পড়ে সে কি পণ্ডিত হবে, কি ডিগ্রি পাবে, তার প্রারব্ধ কি হবে সেটা কেউ জানে না। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग तो एक ही है। तो আছে কলিযুগের যে সঙ্গগুলো তোমরা নিচ্ছ সেটা হচ্ছে অসৎ সঙ্গ, কুসঙ্গ, যেটাতে আমরা আরও নিচে নেমে যাব। আর সতের সঙ্গ হচ্ছে এক বাবা। तो अभी तुमको वंडर लगता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं हैं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। বলছে স্কুল কলেজ দিয়ে তো মানুষ তাও কিছু ডিগ্রি প্রাপ্ত করে, কিন্তু বেদ শাস্ত্র পড়ে মানুষ কোনো সোর্স অফ ইনকাম কিছু পায় না। শুধু পাণ্ডিত্য করে, তাতে যদি টাকা পায়, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য যে একটা সম্মানপূর্বক স্কুলে পড়াশোনা করে যে চাকরি পায় সেরকম তো কিছু নেই। तो बाबा बोलছেন बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे में कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। बाबा বলছেন যে যেমন যারা শিখ ধর্মের লোক তারাও একটু গ্রন্থ পড়ে নেয় আর গুরুদ্বারা খুলে নিচ্ছে, তো অনেক গুরুদ্বারা তারা খুলে নিয়েছে। বলছে আসল গুরুদ্বার হচ্ছে মুক্তি আর জীবন মুক্তি ধাম, সতগুরুর দ্বার। তো সেটা সতগুরু বাবাই এসে এ দ্বার খুলছেন, উনি হচ্ছেন অকাল মূরত। तो अकाल मूरत जिसको काल नहीं खा सकता, आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। বলছে মানুষ কত কান্নাকাটি করে যদি কেউ আত্মীয় স্বজন মারা যায়, তারা জানেই না যে আত্মা একটা বৃদ্ধ পূর্ণ শরীর ছেড়ে আবার একটা নতুন বাচ্চা শরীর ধারণ করবে। तो यह तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत की भी कहानी है ना। আমরা এখানে দুঃখী হই কেন? যেহেতু আমাদের প্রচণ্ড মোহ হয়ে যায়, মায়া হয়ে যায়, জন্য আমরা মরতে চাই না, দুঃখী হয়ে যায়। কিন্তু সত্যযুগে কারো দেহ রাখার সময় দুঃখ হবে না এবং কেউ কারোর জন্যে বেশি কাঁদবে না। তো সেখানে সবাই নষ্ট মোহা, মোহজিত। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस।
ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। বলছেন মানুষ যখন বিনাশের সময় সবাই যখন দেহ ছাড়বে, নানান রকম কষ্ট পাবে, তখন মানুষ বলবে যে আমরা কি দোষ করেছি যে আমরা এসব কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমরা আমাকে কেন ডেকেছো, যে দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো সুখের দুনিয়ায়। তো আমি এখন অকাল মূরত, আমি মহাকাল রূপে এসেছি নিয়ে যাওয়ার জন্যে, তাহলে তোমরা কেন ভয় পাচ্ছ, চলো আমার সঙ্গে। तो अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी ही है, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। বা বলছেন যেখানে মায়ার সঙ্গে তোমাদের লড়াই, কখনো তোমরা হেরে যাচ্ছ, কখনো মায়া হেরে যাচ্ছে, তো এটা জিত আর হারের খেলা। বাস্তবে স্থূলভাবে মায়ার সঙ্গে লড়াই নেই, এটা ভিতরে ভিতরে লড়াই। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विस एबल हैं, जिनका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। दिल्लीते बाबार विशेष बाच्चा থাকতেন জগদীশ ভাই, যিনি সমস্ত বই লিখেছেন হিন্দিতে এবং ইংরেজিতেও লিখেছেন, আর প্রত্যেক মাসের যে জ্ঞানামৃত পত্রিকা উনি এটা বের করেছিলেন, उन्हीं संपादक छिलेन। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, तो अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबूछेन लेखाटा कोनो मासिर बाड़ी नय, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, तो बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। বলছেন বাবার এই জ্ঞান কেউ কেউ খুব ভালো নিচ্ছে, আর কেউ কেউ বিভিন্ন রকম কর্মবন্ধনে ফেঁসে আছে, তাই জ্ঞানটা ভালো করে নিতে পারে না। तो यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। तो ऐसा पार्ट क्यों बचाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा বলছেন যদি কোনো বান্ধেলি মাতা বাবার কাছে অভিযোগ জানায় যে বাবা সবাই কত সুন্দর নির্বন্ধন আছে, বা স্বামীরা স্বামী স্ত্রী দুজনই যুগল জোড়া জ্ঞানে চলছে, সেন্টারে যাচ্ছে, তো আমারই ভাগ্যে এরকম পাঠ কেন হলো যে আমার স্বামী মানতে চায় না জ্ঞানকে, আমাকে সেন্টারে যেতে দেয় না, পবিত্রতার জন্য আমার উপরে এত অত্যাচার করে, তো আমার ড্রামাতে এরকম পাঠ কেন। তো বাবা বলছে এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে না, কেন এটা অনাদি ड्रामा, तोरी ड्रामा, फिक्स ड्रामा, उनको कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया है जो ऐसा पाठ रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं है, यह तो पाठ है। अब लाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पाठ क्यों नहीं। नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। বলছেন যে কোনো মাতা যদি বলে বাবা কেন আমি এরকম সহ্য করব, বাকিরা তো করছে না, তো বাবা বলছেন যে
ড্রামাতে এটা পার্ট আছে যে অবলাদের উপরে কাপুরুষ মানে যারা কামী পুরুষ তারা অত্যাচার করবে, তো তাদেরকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হবে, তবেই তাদের পাপের ঘোড়া তাড়াতাড়ি ভরবে আর বিনাশ তাড়াতাড়ি আসবে। তো এগুলো সব ফিক্স আছে ড্রামাতে। তো এই জন্যে কখনো বলতে নেই যে আমারই পার্ট কেন এরকম। তো বলছে তোমাদেরকে সহ্য ক্ষমতা রাখতে হবে, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघन तो बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपीट आदि कितनी हैं, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियाँ भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। বলছে রক্তেরও নদী বইবে, কোথাও সেফটি থাকবে না। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, फिर वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। আচ্ছা এখন তো তোমরা সকালবেলা বাবার মুরলি শুনতে যাচ্ছ সেন্টারে, কিন্তু এমনও সময় আসছে যে তোমরা বাড়ি থেকে বাইরেও বেরোতে পারবে না। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। বাবা একদম ভবিষ্যবাণী করে দিচ্ছেন যে দিন প্রতিদিন এই জগৎ আরও খারাপ হবে, যুগ আরও খারাপ আসছে, সময় আরও খারাপ আসছে, আর এগুলো আরও সব কিছু খারাপ হতেই থাকবে যতক্ষণ কলিযুগ বিনাশ না হচ্ছে। तो दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। अच्छे दुख एकदम जोरे आसबे। बीमारी आदि में दुख होता है ना, तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? বলছেন যে তোমরা শিবের মন্দিরে যেতে পুজো করতে, কিন্তু কখনো কি তোমাদের মনে চিন্তন এসেছে যে শিবলিঙ্গটা কি কি যে কি দিয়ে এটা তৈরি বা এটার মিনিংটা কি আছে? তো জরুর ইহা জড় হ্যাঁ তো চৈতন্য ভি হোগা। এবার শিবলিঙ্গ তো জড় বস্তু, সে হয়তো মাটি দিয়ে তৈরি বা পাথর দিয়ে তৈরি বা কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি, তো বাস্তবে নিশ্চয়ই চৈতন্যও কেউ হবে। तो वह तब क्या है? তাহলে কি আছে শিব? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। बाबा বলছেন যে কত শিব বাবার বড় বড় মন্দির আছে, কাশী বিশ্বনাথ, সোমনাথ, অমরনাথ, কেদারনাথ, কিন্তু বাবা বলছেন যে কেউই জানে না যে শিব বাবা যাকে এত বড় বড় শিবলিঙ্গ বানিয়ে পুজো করা হচ্ছে সে বাবার আসল स्वरूप হচ্ছে निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? বাবা বলছেন যে তোমরা নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমরা তো পরমাত্মার সন্তান, তাহলে পরমাত্মা তো সুখের সাগর, তাহলে তার সন্তান হয়ে আমরা দুঃখী কেন? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है ना हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाएं? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। বলছেন দুঃখ বা সুখ এটা তো নিজের কর্মের হিসাব।
मनुष्य समझते हैं सुख का एवज सुख और दुख का एवज दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ। বাবা বলছেন মানুষ তো কি ভাবে যে ভগবানই সুখ দিচ্ছে, ভগবানই দুঃখ দিচ্ছে, আর যদিও আমরা কাউকে সুখ দিচ্ছি তো তার পরিবর্তে ভগবান আমাদেরকে সুখ দিচ্ছেন, আর আমরা যদি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি তো ভগবান আমাদেরকে দুঃখ দিচ্ছেন। তো বাবা বলছেন যে না, আমি কখনো কাউকে দুঃখ দিতে পারি না। मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ, यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। বাবা বলছেন যদি এই ড্রামাতে শুধু সুখই থাকতো, দুঃখ থাকতো না, তাহলে তো কেউ ভগবানকে ডাকতোও না, কেউ স্মরণও করতো না। আর তোমরা ভক্তি যদি না করতে তাহলে আমি কি করে তোমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতাম। তো ভক্তি মার্গেরও ড্রামাতে পার্ট আছে, আর বাবার আশারও ড্রামাতে পার্ট আছে। তো এই দুনিয়া যতক্ষণ খারাপ না হবে, পতিত না হবে, তো পতিত পাবন বাবা কিভাবে আসবেন। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। বলছেন সত্যযুগ ত্রেতাতে যাদের রাজত্ব ছিল তারাই সেখানে আসবে, বাকি সমস্ত ধর্মের আত্মারা পিছিয়ে আসবে। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। বলছি পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশ হতেও তো সময় লাগবে। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। বলছে দুনিয়া কত বড় হয়ে আছে, এক একটা শহরেই কত মানুষ ভরে আছে। আর যারা খুব ধনী মানুষ তারা তো पैसा खर्च करे सारा दुनिया भ्रमण करछे। परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। বাবা বলছেন যে এটা কত বড় দুনিয়া, তো কোনো মানুষই পুরো পৃথিবীর যতগুলো দেশ তার ভ্রমণ করতে পারে না। হ্যাঁ, সত্যযুগের করতে পারবে, কারণ সত্যযুগে স্থলভাগ ছোট্ট হবে তো সব চারিদিকে ঘুরতে পারবে। अब इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए। वहाँ तुमको समुंदर में जाने का नहीं है। वहाँ सिलोन बर्मा आदि होंगे, नहीं कुछ भी नहीं। बाबा সত্যযুগের জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার দেখাচ্ছেন যে সত্যযুগে সিলন बर्मा ये सब कंट्री থাকবে না, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। বাবা সেই করাচিও থাকবে না। বাবা যখন এই মুরলি চালাচ্ছেন তো নিশ্চয় সেটা कराची ছিল। तुम सब मीठी नदियों के किनारे किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना। বলছে সত্যযুগে যমুনা নদীর তীরে তোমাদের রাজমহল হবে, আর সেখানে চাষবাস হবে आसे-पासे। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। বাবা ভারতবর্ষের মহিমা করছেন
যে ভারত দেশই এমন দেশ আছে যে আজ পর্যন্ত কারো রাজ্যকে কেড়ে নিল না, কোনো দেশের উপরে নিজে থেকে আক্রমণ করতে গেল না, কারো রাজ্যের প্রতি লোভ নেই, লালসা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি মানুষের কত লোভ লালসা, যে কতবার ভারতবর্ষকে অ্যাটাক করে তারা ভারতীয় সত্তাকে, রাজ্য সত্তাকে নিয়ে নিয়েছে। क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना, भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। अच्छा परे যারা এসেছে তারা টুকরো টুকরো নিয়ে নিয়েছে এক একটা খণ্ড। তো ভারত তো সারা দুনিয়ারই মালিক ছিল, মানে পুরো পৃথিবীতে ভারতবর্ষেরই রাজত্ব ছিল। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेज़ों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो, तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सकें। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। বাবা বুড়ি মাতাদের খুব মহিমা করছেন যে খুব ভালো তোমরা কিছু পড়াশোনা করোনি, কেন বাবা তো বলছে যারা আগে যা কিছু পড়েছো সেটাও ভুলে যাও, কেন এক বাবা আর বাবার এই জ্ঞানকে মনে রাখো। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है, एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा, आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। বাবা বলছেন যে তোমরাই তো প্রমিস করেছিলে যে বাবা তুমি আসো, তুমি যখন আসবে তো তোমার সেবার জন্যে আমরা পুরো বলিহার হয়ে যাব, কুরবান হয়ে যাব। তো বাবা বলছে এই তো আমি এসেছি, এবার আমার উপরে বলিহার হয়ে যাও। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। বলছে বিয়ের সময় বাবা এটাও জানেন, বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রী এক দুজনের হাতে লবণ দেয়। तो बाप को भी कहते हैं हमारा पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, यह सब ख़त्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। तो बाबा বলছেন যে আমরাও বাবাকে আমাদের এই পুরনো দুনিয়ার যা কিছু ছিল আমাদের সেটা বাবাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি যে বাবা তুমি নাও, স্বীকার করো, সেবায় লাগাও, আমাদের সফল করো, যদি তোমার সেবায় না লাগাই তো এমনি সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। तो बाप आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं, तुम बच्चे तो खुश होते हो। अच्छा যখন শুরু শুরুতে বাবার যজ্ঞ স্থাপন হয় তখন সব মাতারা বোনেরা বাবার সেবার জন্য ছুটে চলে আসছিল, বাড়ি ঘর ছেড়ে পরিবার ছেড়ে। তখন সবাই বলতো যে কি কাল এলো এই দাদা লেখরাজ রূপে যে সবাইকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो। বলছেন ভালো ভালো বাড়ির মহিলারাও মাতারাও মার খেত, কত সহ্য করতো, তো তাদের তো সাচ্চা কামাই, তারা এক একটা নিঃশ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতো। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे, इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है।
বলছে পুরো কল্পবৃক্ষ একদম ভিতরে যে শিকড় সেটা পচে গেছে আর যে মূল কাণ্ড সেটাও পচে গেছে। তো এখন এই পুরনো কল্পবৃক্ষ নিচে পড়বেই আর নতুন কলম বাবা লাগিয়ে দিয়েছেন। तो फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। तो यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं। मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत न मिले दूसरे से। বলছে এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপে বৃক্ষের কত ভ্যারাইটি আছে, যে কত বিভিন্ন ধর্মরূপী ভ্যারাইটি শাখা প্রশাখা এবং এক এক রকম মানুষের চেহারা এক এক রকম আছে, কারো চেহারা কারোর সঙ্গে মেলে না। तो बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। बाबा बोलছেন যে সব জিনিসের পরিবর্তন তো হচ্ছে, তো 5000 বছরের পরে আবার সেই বাস্তবিকতাটা ফিরে আসবে। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े हैं। ब्रह्मा की भी शकल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। तो इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। बाबा बोलছেন যে তুমি বাবাকে বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করো আর হাত দ্বারা তুমি কাজ করো। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। বলছে সহ্যশীলতার গুণ ধারণ করে মায়ার বিঘ্নে পাস হতে হবে। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। বলছে অনেক আপদা বিপদ আসবে, অত্যাচার সহ্য করতে হবে, কিন্তু এরকম সময় বাবাকে यादे রাখতে হবে। सच्ची कमाई करनी है। 2 नंबर पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। বলছেন বিশাল বুদ্ধি হয়ে এই তৈরি ড্রামাকে ভালো করে বুঝতে হবে। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। বাবা যে এত সুন্দর মত দিচ্ছেন এই মতে তোমাকে চলতে হবে। আজকের वरदान, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन
हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बाबा বলছেন বাপ সমান বরদানি হয়ে প্রত্যেকের দিলকে আরাম দাও, তারপরে তুমি মাস্টার দিলারাम হয়ে যাবে। तो जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। বলছে যারা বাপ সমান বরদানি मूर्त বাচ্চা তারা কখনো কারো কমজোরি দেখে না। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं, तारा सवार ऊपर रहम दिल है। तो जैसे बाप किसी की कमजोरियाँ दिल पर नहीं रखते, যেমন বাবা কারো কমজোরিগুলোকে দিলে রাখে না, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। এরকম বরদানি বাচ্চারাও কখনো কারো কমজোরি দিলে রাখে না। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं, तारा प्रत्येकेर दिल के आराम देय और से जुने तारा मास्टर दिलाराम। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। तो বলছে যে তারা সবারই आशीर्वाद पाए। আজকের স্লোগান संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिकर बादशाह है। বলছেন संगम যুগে শ্রেষ্ঠ आत्मा से যে सब समय बेफिकर बादशाह। ओम शांति।